It's a high-stakes battle in Uttar Pradesh, and as we approach the final phase of polling, the Bharatiya Janata Party is going all out in the UP Chief Minister Yogi Adityanath's home turf of Gorakhpur. It's popular Bhojpuri star and now Member of Parliament Ravi Kishan, who is the BJP's candidate here. Times Now is in Gorakhpur to get you the access into the campaign trail of Ravi Kishan. Ravi Kishan has been once again fielded by BJP from the constituency of Gorakhpur. It's a prestige battle for BJP and Ravi Kishan himself. Gorakhpur, which remained a girl for Yogi Adityanath for years, and is now Ravi Kishan is a serving MP from this particular constituency. We will get you the inside of how Ravi Kishan is interacting with the people of Gorakhpur while campaigning for his candidature in Lok Sabha constituency of Gorakhpur. In the first 6 out of 8 Lok Sabha elections that took place in Gorakhpur, it was the Congress party that had emerged as the winner. This was once a Congress stronghold, but all that has completely changed. Since 1984, however, it's been the BJP that has won 8 out of 9 times here. And Yogi Adityanath had been a 5-time Member of Parliament from here, winning consecutively before becoming Chief Minister of the state of Uttar Pradesh following a thumping victory for the party in the 2017 Assembly elections. He won a second successive term in 2022. The Gorakhpur Lok Sabha constituency comprises 5 assembly segments: Kempiar Ganj, Pipraich, Gorakhpur Urban, Gorakhpur Rural and Sahajanpur. The BJP won all these segments in the 2022 Assembly elections. Ravi Kishan's campaign for the day begins with an interaction with party workers at his residence. Ravi Kishan won the 2019 Lok Sabha election in Gorakhpur after securing more than 7.17 lakh votes and won by a margin of more than 3 lakh votes. Ravi Kishan has started his poll campaign in Gorakhpur area. Remember, Gorakhpur goes into poll in the 7th phase on 1st of June. Ravi Kishan has left from his residence, as you can see in the visuals. This is the convoy of Ravi Kishan. He is moving towards Gorakhnath temple, from where he will start his Jan Sampark Abhiyan and he will meet different kind of people from the society. Ravi Kishan, who was first elected as a Member of Parliament in 2019 from Gorakhpur constituency, is in fray for the second time from this very particular constituency. Gorakhpur, which is the girl of Yogi Adityanath, BJP and Ravi Kishan himself are very confident of winning this time again from this particular constituency. A year earlier, the BJP had suffered a setback in a by-poll in Gorakhpur following Yogi Adityanath vacating his seat after taking over as Chief Minister. The Samajwadi Party won that by-poll, but the BJP came roaring back in 2019. Kishan is now a resident of Gorakhpur, having bought a house here. तो रवि किशन जी, आप 2019 में गोरखपुर आते हैं और सबसे पहले आप आके यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और जो एक रिकॉर्ड था खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो रिकॉर्ड भी तोड़ते हैं। 7 लाख वोट पाते हैं, 60% वोट था। क्या वजह रही थी इतनी थंपिंग विक्ट्री की 2019 में, और इस बार 2024 में क्या नतीजे आप उम्मीद कर रहे हैं? ये वो प्यार है, मोदी योगी जी का प्यार, उनके कार्यों का, उनके ऊपर जो विश्वास है उसका प्यार, उसका प्रसाद हमको पिछली बार मिला। और मेरे फैंस जो रहे, जो कई सालों से मुझे देखते रहे, उनको लगा कि हमारा भोजपुरी का लड़का, हमारा भोजपुरी माटी का लाल, जो आदमी भोजपुरी की आवाज बुलंद करता कई सालों से, वो चुनाव लड़ रहा है। तो सबने हमको ऐतिहासिक मत दिया। और इस बार तो क्या 5 साल लोगों ने देख लिया, और सबसे ज्यादा उस वक्त तो हमको पर्दे से जानते थे। उसके बाद अनगिनत 5 साल में कार्य के, बाढ़ में, पानी में, कोरोना में लोगों ने देखा मुझे, सबके सुख दुख में पहुंचा मैं 5 साल। यहीं पे महाराज जी के मंच को साझा किया। हमेशा लोगों ने मेरे वीडियोस देखे, मेरी बातें सुनी, मुझे पर्सनली टच किया, देखा, महसूस किया एक इंसान के रूप में। और इस बार मोदी जी और योगी जी की योजनाएं इतनी सड़कों पे दिखाई दे रही हैं, गरीबों में दिखाई दे रही हैं, गांव में, देहात में, ग्रामीण में। वो सारे लोग इस वक्त
मन बना लिए हैं कि अपने मोदी जी को ऐतिहासिक मतों से गोरखपुर उनको सीट दिलाने की तैयारी में है। और ऐसा मत जो कि इस वक्त प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इतने वोट गिरेंगे, उसका रिकॉर्ड बहुत बड़ा होगा और बहुत सुंदर होगा, जिससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहेंगे कि वाह, देखिए गोरखपुर ने हमको कैसे प्रसाद दिया। अगर मैंने उनको एम्स दिया, फर्टिलाइजर दिया, वंदे भारत ट्रेन दिया, या मैंने अनगिनत उनको 4 लेन 6 लेन दिए, कनेक्टिविटी दी, एयरक्राफ्ट की कनेक्टिविटी दी, ट्रेनों की सुविधाएं दी। आज गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है। स्मार्ट क्लासेस दिए मोदी जी ने, जन धन योजनाओं के साथ 50 करोड़ लोगों को अर्थव्यवस्था के साथ गरीबों को जोड़ दिया। और समूह में विश्वकर्मा योजना बहुत हुई, अनाज जो मिला, प्रधानमंत्री आवास जो मिला, उसका प्रसाद ही मिलेगा। हर घर में लोग 3 बार जो भोजन पा रहे हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद दे रहे हैं। नहीं, आज यहाँ पे किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दिया। भारत में नहीं, गोरखपुर में भी कोई किसान, सब प्रसन्न है, कोई हाथ नहीं फैला रहा है। तो ये सारी जो सुविधाएं थी, जो मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जो दिख रहा है, ये पहला चुनाव होगा या जहां पर लोगों के पास व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को देखकर या उस व्यवस्थाओं पर चलकर, वो सड़क हो, वो इलेक्ट्रिक बस हो, वो ट्रेन की सुविधा या जहाज में आके वोट करना हो विदेश से, वो कनेक्टिविटी के साथ लोग वोट कर रहे हैं। जहां पर वो जब जॉब पे जा रहे हैं तो अपनी बहन बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपनी मां को घर में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक सुरक्षा का माहौल, एक राम राज्य जिसको कहते हैं, ये माहौल है कि मोदी जी ने कहा, उनको एक वोट दिए, मंदिर और विकास दोनों साथ बना। महाराज योगी जी को दिया 17 में, तो फिर मच्छर माफिया सब चले गए। अपने सांसद रवि किशन को वोट दिया 19 में, तो वो बंबई छोड़ के यहीं बस गए, यहीं के वोटर बन गए। अपना फिल्म की शूटिंग का रोजगार यहां लगाया, 150 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग अब हुई यहां पर। और उसके बाद यहाँ पे कलाकारों को एक रोजगार शुरू हुआ, एक सम्मान मिला। गोरखपुर आज एक नजीर पेश कर रहा है समस्त भारत में। अच्छा, आपने रामराज की बात करी, आपने कहा कि मंदिर और सुशासन मंदिर दिखाइए कैमरामैन, ये देखिए। तो हम लोग इस समय गोरखनाथ मंदिर के बाहर हैं। शक्ति है जो पूरे आज उत्तर प्रदेश के सूबे को चला रही है शांतिपूर्वक, जिसको आप कहते हैं ना, किसी वक्त में ये बीमारू प्रदेश था, आज ये उत्तम प्रदेश हो गया। 43 लाख करोड़ का निवेश यहाँ पर पूज्य महाराज जी मोदी योगी जी के राज्य में हुआ, और उसमें 10 लाख करोड़ का निवेश धरती पे दिखाई दे रहा, जिससे 1.25 करोड़ लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोजगार मिलेगा। अच्छा, आपने रामराज की बात करी, तो इस बार जो मुद्दा है राम मंदिर का, वो क्या लगता है कि कितना जो है मजबूत होगा? विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने एक किनारे जो है रहे, कभी राम मंदिर का न्योता आए नहीं आए, तो कितना बीजेपी को इसका इस बार फायदा मिलने वाला है और क्या जमीनी मुद्दे होंगे? फायदे नुकसान के लिए नहीं करते, मोदी जी अपने वचनों को पूरा करते हैं। देखिए, फायदा नुकसान भाजपा नहीं देखती। वादा क्या किया था उसको पूरा करना। और प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, जो वादा उन्होंने गुजरात को किया था, गुजरात एक रोल मॉडल बना पूरे देश के सामने। फिर वही मुख्यमंत्री के रूप फिर प्रधानमंत्री बने, फिर उन्होंने देश को बदला, पहले गुजरात को बदला। गुजरात में मैं जानता था, जब मैं तो वहां शूटिंग करता था, कि वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी लोगों की, वहां भूखमरी भी थी, वहां आदिवासी क्षेत्र बहुत, केवड़िया वगैरह में मैं शूटिंग करता था, जहां वल्लभ भाई पटेल का आज स्टैचू लगा है। आज वहां पे आज 5 स्टार होटल्स बन गए, वहां गरीबों को रोजगार मिल गया। अयोध्या हम देखते थे, अयोध्या की जो स्थिति थी, अयोध्या में आज 20 लाख लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोजगार मिला। मंदिर के साथ, सिचुएशन के साथ, रिलीजियस प्लेस के साथ, टूरिज्म को, इकोसिस्टम को कैसे जोड़ना, कोई भी वेस्ट में हीरा कैसे बनाना, कोई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां लोगों को कचरा दिखता है, वहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टा सोच है, क्योंकि वो निस्वार्थ संत अवतरित हुए, उनको वहां हीरा दिखता है। ये सुंदरता बहुत, यही देश को कितने, मैं विदेशों में ज्यादा रहता था फिल्मों की शूटिंग में, तो मैं देखता था कि किस तरह से ओछी नजरों से भारत को लोग देखते थे। आज इसी भारत को लोग एक सम्मान की नजर से देखते हैं। आज इसी भारत के पासपोर्ट की वैल्यू हो गई। आज विश्व में सभी देशों में सम्मान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बढ़ा है। आज विश्व में आज आतंकवाद उनसे डरता है। आज पड़ोसी मुल्क जो हमसे जलता था, जो हमारा दुश्मन था,
वो उसकी हिम्मत नहीं नजर उठाया। अब ये वो भारत है जो घर में घुस के मारता है। अब ये मार नहीं खाता, ये भीख नहीं मांगता, ये देता है वैक्सीनेशन। जब कोरोना में हुआ वैक्सीन दे के कई देशों की जान बचाने के लिए सक्षम हुआ है। आज इस भारत को लोग विश्व गुरु के रास्ते पे देख रहे हैं। चाइना और अमेरिका को बीट करने की क्षमता रखने वाला है भविष्य में। जो 48 में हमारे 47 में प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं कि 2047 में हम लोग एक विकसित भारत बनेंगे, वो मुझे बहुत कम, क्योंकि पूरा भारत का विश्वास मोदी जी है। और आज एक बहुत सुंदर बात है ये। अच्छा रविकिशन जी, आपने जो है बात करी कि कैसे जो है बीजेपी जो है काम कर रही है, वहीं पे एक जो उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके मुख्य अखिलेश यादव का दावा है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 में से करीब 79 सीट्स जो हैं वो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जीत रही है। वो गोरखपुर को भी बात कर रहे हैं कि गोरखपुर भी वो जीत रहे हैं। क्या लगता है कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितना उनका मजबूत दावा है ये? सपने हैं, देखिए सपने देखना कोई पाप नहीं है। दिन में सपने देखना। किस मुद्दे पर? ये प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है। ये विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव है। ये किसी प्रधान का या विधायक का नहीं चुनाव है, विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव है। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। सांच को आज क्या, हम लोग काम किए हैं। इनके ना नेता ना इनका प्रत्याशी गोरखपुर में रहा है। ये लोग सब चंदा लेने आए हैं, चंदा लेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। ये लोग चंदा बटोरने आते हैं, हर चुनाव में चंदा लेते हैं और अपने समाज से मांगते हैं, और उनका समाज बेचारा समझ नहीं पाता। थोड़ा बहुत चंदा उनको मिला होगा, वो चंदा बटोरने के लिए ये लोग आते हैं और खुश होकर लोग चले जाएंगे। इनको पता है रिजल्ट क्या होने वाला। ये जानते हैं कि हम लोगों की कितनी स्थिति रहेगी। उन लोग जानते हैं कितनी बुरी हार गोरखपुर की जनता उनको देगी, क्योंकि कोरोना में नहीं थे, न कभी किसी सुख दुख में थे। पूज्य महाराज जी, ये मंदिर की सीट है, ये मंदिर में सम्मान से जाएगी। ये मठ की सीट है, मैं सेवक हूं, और जनता मठ की सीट, मंदिर का सम्मान हमेशा रखती है। इस बार भी रखेगी, पिछली बार भी रखी थी। उनको पता है कि सुख दुख में महाराज जी खड़े रहते हैं, सुख दुख में हमारा सांसद रहेगा। हमारे मोदी जी बड़ी योजनाओं को गोरखपुर को देंगे। हमारा सांसद सदन में बोलेगा, 500 प्रश्न पूछ के नंबर 1 सांसद बना था। ये सांसद ले आएगा सबसे ज्यादा ट्रेन ठहराव कराने वाला सांसद, वंदे भारत पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश पे लाने वाला, 2650 करोड़ की सोनोली रिंग रोड लाने वाला, अपना रोजगार। फिल्मों की शूटिंग होने लगी जहां पर ये कलाकारों को नहीं देख पाते थे, आज वहां पे कलाकार यहीं पे सब घूम रहे हैं। यहाँ के होटल इंडस्ट्री से लेके सबको बिजनेस मिल रहा है। 5 स्टार होटल की कतार लगी है। गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है, जहां अपराध होते थे, जानवरों की लाशें बहती थी, आज वहां पर क्रूज घूम रहा है, पानी का जहाज घूम रहा है, जो कि डिनर और लंच सबको आज पर एक मनोरंजन हो गया। वाटर स्पोर्ट्स हो गया, ओपन जिम है, स्कूल स्मार्ट स्कूल गरीबों के लिए हर गांव देहात में ओपन जिम की व्यवस्था शुरू हो गई है। आज स्कूल स्मार्ट क्लासेस करीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए के स्मार्ट क्लासेस हमने ग्रामीण क्षेत्रों में दिए। तो ये सारी व्यवस्थाओं से गोरखपुर बहुत प्रसन्न है, गोरखपुर बहुत खुश है, और गोरखपुर मोदी योगी जी का ऋण चुकाने 1 तारीख को तैयार है। This time around, Kajal Nishad, the Bhojpuri actor herself, has been fielded by the Congress party, and Javed Simnanai is the BSP candidate in a 3-way fight. जो वोट पड़ेंगे क्या सिर्फ विकास के मुद्दे पे होंगे, या जाति भी कुछ जो है खेल करेगी? क्योंकि जो आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं काजल निषाद, कहा जाता है कि गोरखपुर में निषाद समुदाय जो है काफी अच्छी संख्या में है, तो क्या कुछ वोट वो काट पाएंगी या टक्कर देंगी आपको? पिछली बार हमारे अपोजिट बसपा सपा के नेता रामभुआल निषाद थे, वो बहुत बड़े नेता थे, उनके साथ हमारा टकराव हुआ था। इस बार जो प्रत्याशी उन लोग ये कहीं किसी ने देखा नहीं। चुनाव ये आती हैं, जीत लड़ती हैं, हारती हैं, चली जाती हैं, हारती हैं, चली जाती हैं। इनके बारे में कोरोना में लोग ढूंढ रहे थे सपा के, तो इनकी बिरादरी के किसी निषाद के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। निषाद की संध्या निषाद बिटिया की इंजीनियरिंग पढ़ाई, और अनगिनत निषादों को अस्पताल और उनको उनकी सुविधाओं में, उनकी पढ़ाई में, उनको अटल आवास विद्यालय में अनगिनत निषादों के बच्चों को हमने
पढ़ाई में एडमिशन करवाया सहजनवा में। आज बच्चे पढ़ रहे हैं। 70 करोड़ का स्कूल बनाया जहां पर 1 रुपया लगता नहीं, और बोर्डिंग में उसमें अनगिनत निषाद के बच्चे हैं, अनगिनत। इनको फ्री में, कई निषाद के बच्चे परिवार को हम एम्स में फ्री में इलाज करवाते हैं, जो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनवाया। तुरंत उनका एडमिट करवाते हैं। यहाँ नहीं होगा, बड़ा कुछ होगा तो दिल्ली में करवाते हैं। निषाद समाज के लिए हम लोग, सर्व समाज के लिए 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। ये लोग वोट मांगने जाते हैं तो उनको इन पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि माफियाओं को माफियाओं को पैदा करने वाली पार्टी है, गुंडे लोगों को पैदा करने वाली पार्टी है, दबंगों को जिन्होंने निषादों पर अत्याचार किया और राम भक्त पर जिन्होंने गोली चलाई है, उस राम भक्त पर, प्रभु राम के अस्तित्व पे जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, उनको तो कभी निषाद समाज में दावे के साथ लिख के देता हूं, कभी वोट नहीं देगा। आप देख लीजिएगा, एक एक महिला मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। पूरे भारत में एक एक महिला, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये हुआ क्योंकि सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां, सौगात, मैं बोल रहा हूं, मोदी जी ने जो किया, योगी जी ने किया है, ये शक्ति भारत कई सालों के बाद तो जगा है, जिंदा हुआ है, चल रहा है, आगे अपना भविष्य देख रहा है आने वाली पीढ़ी के साथ। लोग गुंडे माफियाओं की पार्टियों में जहां पे अराजकता हो, तुष्टीकरण हो, हिंदू मुसलमान के दंगे हर तीसरे दिन गोरखपुर में होते थे जब सपा की सरकार थी। लोग वो माहौल में अपनी बहन बेटियों को नहीं देखना चाहते। वो गरीब परिवार हो, वो निषाद परिवार हो, दलित समाज हो, और ये लोगों ने राजनीति की सबसे घटिया स्थिति तो मैंने इस बार देखी कि इन लोगों ने ये बात फैलाई कि संविधान बदला जाएगा 400 पर। ये सारे इन लोगों की, इससे पता चलता है कितने हताश हो चुके हैं ये लोग, अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो लास्ट दाव ये इसको एकदम घटिया राजनीति जिसको कहते हैं, जहां पर इनके पास मुद्दे क्या हैं, इनका प्रधानमंत्री 26 दल में कौन होगा इनको पता नहीं, इनका विजन क्या है, इतने बड़े विराट देश को जो मोदी जी इस स्तर पे पहुंचा है, इसको क्या देंगे, क्या दिशा देंगे, युवाओं को क्या दिशा देंगे। आज हमारे यहाँ इतना एजुकेशन सिस्टम गोरखपुर में बना है, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो रोजगार के लिए सब हमारे बच्चों को लेके आज अनगिनत बच्चों को वहां जॉब मिल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर आ रही हैं। आज IIT IIM की मांग मैंने सदन पटल में रखी कि गोरखपुर में हो। यहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट की बात की ताकि बच्चों को मैं ट्रेन करूं। सिनेमा क्या है, सिनेमा द्वारा ही मैं बना हूं, उस सिनेमा से भी आप पैसे कमा सकते हैं। मैंने कमाया, मैं तो एक गरीब पुजारी का लड़का कमा के यहाँ आपके समक्ष 2 शब्द बोलने के काबिल बना। तो ये सारी चीजें हैं और ऐसा कुछ नहीं है। आप 4 जून को देखिएगा, एक ऐतिहासिक वोटिंग के साथ भाजपा चुनाव जीतेगी और 400 पार का जो नारा देश की जनता ने दिया उसको सार्थक जनता करेगी और आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। मोदी जी की सरकार बन रही है और बड़े बड़े सुंदर निर्णय देश के हित में 4 जून के बाद लिए जाएंगे, जहां के बाद मेरा देश बहुत महान, अति महान और बहुत ही विराट होगा। मुझे ये पूरा विश्वास है। Ravi Kishan has himself had an interesting political career. He joined the Congress party in 2014 and fought unsuccessfully from the Jaunpur seat. He joined the Bharatiya Janata Party in 2017. Times now is in the Jungle Kodia area of Gorakhpur in the poll campaign of Ravi Kishan. Here we will talk to the voters and the residents of Gorakhpur to know what their mood, to where they are going to vote and what is the conditions, the poll condition of the Gorakhpur city. Gorakhpur शहर का क्या माहौल है इस समय? ठीक माहौल है। योगी जी के विकास कार्यों पे सांसद जी को पूर्ण बहुमत लगभग 10 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्या मुद्दे हैं गोरखपुर शहर के जो लगता है रवि किशन पिछले 5 साल में नहीं कर पाए, आने वाले 5 सालों में उम्मीद कर रहे हैं जनता? सांसद जी 5 सालों में बहुत ही विकास कार्य किए हैं और सारा विकास कार्य महाराज जी के ऊपर जो है, सारा विकास कार्य महाराज जी के ऊपर ही है यहाँ पे, और सारा कार्य महाराज जी किए हैं। सांसद जी का भी निधि द्वारा कार्य होता ही है सारा। तो क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है कितना मजबूत है बीजेपी के लिए? कितने वोट मिलने वाले हैं इस बार मौजूदा सांसद को? आपकी 400 पार है, ठीक है। योगी और मोदी को लेकर आना है, ठीक है। टोटी चोर को तो लेकर आना नहीं है, जो राम का नहीं वो काम का नहीं।
तो यहाँ का जो मुद्दा है, जमीनी मुद्दा, कितना जो है हावी रहेगा इस आने वाले लोकसभा चुनाव में गोरखपुर के लिए? गोरखपुर चुनाव जीत रही है, बम्पर से जीत रही है गोरखपुर। महाराज जी का सीट है, गोरखपुर जीत रही है। जनता यहाँ महाराज जी के कार्यों को देखती है और महाराज जी ने जितना विकास कार्य किया है उतना आज तक किसी सरकार में विकास कार्य नहीं हुआ है। आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग यहाँ के हैं, गोरखपुर निवासी हैं, क्या विपक्ष जो है यहाँ पे कहीं दिखा है या विपक्ष इस बार चुनाव में कहीं टक्कर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा इस बार टक्कर, कहीं से विपक्ष नहीं दे पाएगा टक्कर। You can see in the visuals that Ravi Kishan is singing in Bhojpuri, greeting people of this particular village. This is one of a kind of a political campaign by Ravi Kishan. हमरे योगी जी के कमल निशानिया हो, कमल निशानी चला हो सखी वोट डारे कमल निशानी। हो सखी वोट डारे कमल निशानी। भारत माता की वंदे वंदे, बोलो जय श्री राम। And with someone who's a Bhojpuri heartthrob, we could not help but ask him to speak a few words in the language. अभी यह कहब कि भैया चला हो सखी वोट डारे कमल निशानी। अब हमारा आवाजो चल गई। हमरे मोदी जी के कमल निशानिया हो, हमरे योगी जी के कमल निशानिया। चला हो सखी वोट डारे कमल निशानी, चला हो सखी वोट डारे। At the end of a hard day's campaign, it was time to wrap up. Gorakhpur votes in the final phase of the Lok Sabha polls on the 1st of June. On the 4th of June, we'll know whether the BJP's hugely impressive record in this key constituency continues.